Assalamu alaikum everyone. Let me invite you to the Housing Research Center UMT to the monthly webinar series. Today's our guest is Mr. Ali Khizr Aslam. He is a senior columnist with over 15 years of experience in economic, financial, and business research analysis. He has established the Economic and Business Research Department at Business Recorder, which is the country's leading financial newspaper. Ali has an MSc in Economics from LUMS and BSc in Civil Engineering from UET Lahore. So, welcome Ali Khizr to our webinar series. Hope you are doing well. Thank you, Sana. Thank you for inviting me, and I'm excited to be at your platform and talk to your colleagues and students. Okay, so before moving into the formal discussion, I would like to ask you one thing, that your background is from civil engineering. So what incident or which thing inspired you, to shift your professional career from the engineering domain to the policy domain? Well, if you see that engineers have very strong background in mathematics, and they usually have good analytical skill by the kind of training they do have. So, when you move into the policy domain, you work in the finance or economics fields. Usually, engineers have good speed to pick up because there's a lot of commonality of mathematics and analysis. So, I happened to see that program and really liked the subject economics and finance, and I just moved into that, and then life takes me further over there, and that's how it is. सही आपकी आवाज पहले एकदम बिल्कुल क्लियर हो गई थी, अब थोड़ी सी फिर लो हो गई है, सो पहले आपने आई गेस कुछ चेंज किया था. Okay, just a second. बेहतर है? Is it better जी now? जी, now it's very clear. जी जनाब. जी, so I जी 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 बताएं, आप बताएं. Okay, so I have I have recently completed my PhD in housing, और मैंने when I started looking into the housing subject in on the national level, तो मुझे research papers के साथ साथ business recorder के ऊपर हाउसिंग के टॉपिक्स पे कुछ बड़े मजेदार किस्म के बड़े enlightening full जो है वो आर्टिकल्स मिले. Then I also came across a report written by you from the platform of Karan Das. So uske andar, the title was affordable housing and builder finance. So before moving into the nitty gritty of what is housing, affordable housing and builder finance, how you define affordable housing? How you will define it? देखिए जी, अफोर्डेबिलिटी और लो कॉस्ट के अंदर देयर इज अ बेसिक डिफरेंस. सो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई फॉर योर लिसनर्स टू अंडरस्टैंड दिस कि जी अफोर्डेबिलिटी कैन बी एट एनी प्राइस. अफोर्डेबिलिटी कैन बी एट एनी इनकम ग्रुप. अफोर्डेबिलिटी कैन बी इन एनी इकोनॉमी, इन एनी सिटी. सो अफोर्डेबिलिटी बेसिकली जो डिफाइन होता है, दैट इज अ मैट्रिक्स बेस्ड ऑन हाउ मच यू कैन पे as compared to what your income levels are. So if you see in the developed world, or now it's in the past 10-20 years, the phenomena is fast emerging into the growing economies, emerging economies like India, China, and many others. Is this के housing की demand जो होती है mortgage पे होती है. Unfortunately, पाकिस्तान के अंदर भी वो market नहीं है. So it would be hard to understand from the Pakistan perspective, but affordability होता है कि people usually buy those asset at mortgage. But in the start of your career, when you are between the age of, let's say, 30 or 35, or maybe 25 to 35, you go and mortgage a house, and you pay the mortgage for the next 15 to 25 years. And this makes you to have that kind of saving and create an asset of your own, while you don't have that kind of money in cash in hand. तो वो जो मॉर्गेज की जो होती है आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट होती है बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट एंड द प्रिंसिपल पेमेंट एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट, वो रूल ऑफ थंब ये होता है कि इट शुड बी अराउंड समवेयर 30 to 35% ऑफ योर डिस्पोजेबल इनकम. So for instance, if your disposable income is about 300,000 rupees per month, so you should be paying about 100,000 or around
on your mortgage payment. So that's how you define affordability for any kind of income level in any economy. अब पाकिस्तान के अंदर ये कुछ इस तरह से नहीं है कि पाकिस्तान में now the housing is a very different kind of a market where you pay upfront. आपने घर लेना है 5 करोड़ का, 3 करोड़ का, 15 करोड़ का, आपने मोस्ट ऑफ द केसेस आपने कैसे आप कैश पे करेंगे, आपके पास 1 2 3 महीने के टर्म्स होंगे उसको पे करने के, और आप लमसम पे करके उसको ले लेंगे. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट मार्केट. और इस तरह की मार्केट में हु कैन अफोर्ड दैट के दोज हु हैव द मनी, और जिनके पास एसेट्स हैं जो उनको अपनी फैमिली से सपोर्ट में मिले हैं या कहीं से भी आए हैं, वो उसको डिस्पोज ऑफ करके वो अपने अपने हाउसिंग को लेते हैं. So from their own income for a middle class inspiring people जो कि नौकरी करते हैं और नौकरी करते हैं, अपनी फैमिली को स्टार्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स के यहाँ से मूव होते हैं, अपनी जगह पे लेते हैं, तो दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू लिव ऑन रेंट, क्योंकि उनकी जो अफोर्डेबिलिटी मैट्रिक्स में वो मॉर्गेज आती नहीं. एक तो मॉर्गेज मिलती बड़ी मुश्किल से है, और अगर मिल भी जाए तो वो अफोर्डेबिलिटी जिस तरह के घर में वो रहते हैं वो नहीं मिलती. अगेन यहाँ पे अगर हम रेंटल रीट देखें तो वो 4 से 5% है, यानी कि आपकी एक प्रॉपर्टी जो है वो 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर जो रेंट होगा अगर हम 5% पे करें तो जी तकरीबन वो 15 लाख होगा, यानी कि 15 को 12 से डिवाइड करें तो 1,10,000 का होगा. और जब हम 20,000 का होगा, जब उसी घर को हम मॉर्गेज करने जाते हैं तो 3 साढ़े 3 लाख रुपए की मंथली पेमेंट आती है. तो वो लोग जिस घर में रहना चाहते हैं, जितना रेंट करते हैं उससे 2 से 3 गुना ऊपर उन्हें मॉर्गेज करना पड़ता है, तो वो लेते नहीं है, और अगर लेना भी चाहे तो बैंक देते नहीं है. सो दैट्स अ फिनोमेना. सो द अफोर्डेबिलिटी इज बेस्ड ऑन दैट, और अफोर्डेबिलिटी इसी मैट्रिक्स पे बनती है, और जब इस मैट्रिक्स पे नहीं आएगी तो जो मिडिल क्लास हाउसिंग बूम जो चाहते हैं, जो हमारा हाउसिंग गैप है वो फिल नहीं हो पाएगा. सही. अगर हम पाकिस्तान की हाउसिंग सेक्टर की अपने यूजर एंड की बात करें, ठीक है, जो जिनके बारे में एक्चुअली हाउसिंग बहुत बड़ा मसला है, एक अच्छा एक फॉर्मल यूनिट बनाना बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, तो उनको ये टर्म कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ही क्रिएट करती. या इसको लो कॉस्ट होना चाहिए, या इसको लो इनकम होना चाहिए, या इसको अफोर्डेबल होना चाहिए. मतलब हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनकी डोमेन के अंदर बेस्ड ऑन दैट, जो कि सिर्फ पब्लिक साइड से आ रहे हैं या गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स है, उनके लिए कौन सा वर्ड आपको लगता है कि यूजर एंड को ज्यादा समझ आएगा, जो जो कि 25,000 कमा रहे हैं महाना, या जिनका जो जिनको वाकई जरूरत है, या फिर जो अर्बन पुअर है, या वो वाले जिनके लिए दे आर लिविंग ऑन द रेंट, या फिर वो बहुत ही कच्ची बादियों में रह रहे हैं. कौन सी टर्मिनोलॉजी आफ्टर 70 above 70 years of Pakistan, इतनी पॉलिसी रिसर्च हुई है, इतनी डायलॉग हुआ है, what terminology perfectly understands what are user demands, और उनको समझ भी आए क्या यूज करना चाहिए हमारे इदारों को जो गवर्नमेंट के हैं. देखिए ना, दो मुख्तलिफ तरह के सेगमेंट है. जो आप बात कर रहे हैं कि जो लो इनकम लोग हैं, जैसे 25,000 कमाते हैं या 30,000 कमाते हैं एज अ फैमिली यूनिट, जो कम कमा रहे हैं, उनको तो नेचुरली उनके लिए तो लो कॉस्ट हाउसिंग की सॉल्यूशंस आने चाहिए, वो एक अलग चीज है. सो द लो कॉस्ट हाउसिंग उसकी 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 उस वो है, वो मार्केट में कोई दे रहा है नहीं दे रहा है. जो कच्ची आबादी में रहते हैं, जिनके घरों में सीवरेज नहीं है, जिनके घरों के अंदर प्रॉपर वाटर की नहीं है, और तरह के उनके उनके बेसिक सिविक एम्यूनिटीज नहीं है वहां पे, उनको आप एक प्रॉपर जगह पे लेके आए, दिस इज अनदर सब्जेक्ट. ठीक है. और एक सब्जेक्ट ये है कि जी अफोर्डेबिलिटी एट वेरियस इनकम लेवल, जहाँ पे आपके हाउस होल्ड रहते हैं, जैसे पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन अगर हम देखें जो नया सर्वे आया है तो उसमें 38 मिलियन हाउस होल्ड फैमिलीज हैं, यानी 3 करोड़ 85 लाख खानदान पाकिस्तान में बसते हैं. उन खानदान में डिफरेंट इनकम लेवल पे आते हैं, उसमें से तकरीबन 3 करोड़ खानदान ऐसे हैं जिनकी एवरेज इनकम 35-40 हज़ार या उससे नीचे है. तो एवरेज इनकम जिनकी है तो वो उनके लिए मेजॉरिटी, यानी कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो आपकी लो इनकम हाउसिंग के अंदर फॉल करती है, तो एक वो आती है. बट अफोर्डेबिलिटी जो है वो आखिरी जो 7-8 मिलियन के अंदर भी लोग रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे इस
इस आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आपके बहुत सारे आपकी फैकल्टी मेंबर्स होंगे, बहुत सारे यहाँ पे आपके देखने वाले होंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं और वो अपनी तनख्वाह पे अपनी सेविंग्स पर घर बनाना चाहते हैं बगैर इसके कि उनको उनको खानदान की तरफ से कहीं से कोई एसेट मिले और उसको बेच के बनाएं, तो उनके लिए ये बनाना करीबन नामुमकिन है। तो वो अफोर्डेबिलिटी वो चीज आती है, हमें दोनों चीजों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, हम दोनों चीजों को सेपरेट ट्रीट करना चाहिए। और जी पाकिस्तान में जैसे कहते हैं कि स्लम्स है, स्लम्स जो हैं उसके जो स्लम्स को यूजुअली हम कच्ची आबादी से कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स कहती हैं कि जी अर्बन हाउसिंग कराची लाहौर जैसे शहरों में 40 से 50% स्लम्स है। तो वो स्लम की डेफिनेशन भी वो थोड़ी सी फर्क है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये होता है कि लैंड आपको मिल गया, उस लैंड के ऊपर आपने प्रॉपर अप्रूवल्स नहीं ली, लेकिन आपने वो प्लॉटिंग कर दी, वहां प्लॉटिंग कर दी, कुछ घर भर के घरों में लोग रहने लग गए, बिजली गैस पानी नहीं है उनके पास, तो फिर इलेक्शन आया तो उन्होंने जी वहां पे बिजली दे दी उस तरह के एमएनए ने, तो जनाब जबरदस्त अगले इलेक्शन में उसने गैस दे दी, जबरदस्त पानी दे दिया। जब ये सारी चीजें हो गई तो वो लोग उधर रहते हैं, वहां पे पक्की सड़कें हैं, गाड़ियां भी उनके पास हैं, उनको बिजली भी मिलती है, गैस भी मिलती है, पानी भी मिलता है, लेकिन उनका फर्क नहीं होता, उनके 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 ऊपर जो है उनको 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 वो लैंड का जो है वो उस पर अनडिस्प्यूटेड ओनर नहीं होते। अब वो एक अलग इशू है, उसके ऊपर आप उसको बेचने चाहें तो आपको प्राइस नहीं मिलती, या उसके ऊपर आप बैंक फाइनेंसिंग नहीं कर सकते, उसको मॉर्गेज नहीं कर सकते, ये एक अलग इशू है। फिर एक लोग हैं जो कच्ची आबादी में रहते हैं, वो आबादी में रहते हैं कि जिनके पास वाकई वो एमिनिटीज नहीं है, तो उनको एक आपने लो कॉस्ट हाउसिंग सोल्यूशन देने हैं, वो एक अलग है। फिर एक वो लोग हैं जो आप बड़े होते जा रहे हैं और अपने खानदान में बड़ा उनके अपने मतलब एक ही घर में जब 3-3 फैमिलीज रहती हैं तो उनके अपने अपने अलग यूनिट्स होने चाहिए, अपने अपने घर होने चाहिए, तो उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, उसके लिए मॉर्गेज की जरूरत है, वो एक अलग इशूज है। तो हमें इन सब इश्यूज को सेपरेटली देखना चाहिए और सबको टैकल करना चाहिए, उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए आपस में। ठीक। और इसके दरमियान में एक इंक्रीमेंटल हाउसिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो लोग पहले एक ग्राउंड फ्लोर पे एक कमरा बनाते हैं, फिर उसके ऊपर एक और छत बनाते हैं, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसके दरमियान कैसे फिट इन करता है? क्योंकि इंक्रीमेंटल हाउसिंग में भी आपने देखा होगा, जैसे शुरू में जितना मनी आया, ठीक है, या किसी ने जेवर बेचा या कुछ कोई सेविंग की, तो एक कमरा छत डाल दी, ठीक है। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम फैमिली बढ़ी, या कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो घर के अंदर ही दुकान बना ली, या घर के अंदर ही ब्यूटी पार्लर का कॉन्सेप्ट शुरू कर लिया। तो उसको फिर इस कॉन्सेप्ट को भी सोचना चाहिए, इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है, या फिर इसको हम किसी तरीके से फिट इन कर सकते हैं विद दी ऑलरेडी ऑनगोइंग मैकेनिज्म्स, ये जो लो कॉस्ट है, ये लो इनकम है। व्हाट यू थिंक? जी। अच्छा, थोड़ा दोबारा आप अपना सवाल फ्रेम करेंगे एग्जैक्टली कि आप क्या पूछना जैसे चाह रहे जैसे इंक्रीमेंटल हाउसिंग के अंदर हम हैं। देखते हैं कि जो लो इनकम ग्रुप्स ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास पैसे सेक्शंस के अंदर आते हैं, ये कहीं कमेटी डाल ली, या कहीं से जेवर बेच दिया, या किसी के वालिद साहब फोत हो गए तो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा दे दिया, तो उनके पास एक अमाउंट आ गई। जैसी ये अमाउंट आती है तो वो फिर अपने घर को एक्सपेंड करते हैं। हाँ, तो इस अब इस देखिए इस स्कीम को हम कहाँ फिट कर सकते हैं? देखिए पाकिस्तान के अंदर जो इंक्रीमेंटल हाउसिंग है इसके अंदर फाइनेंसिंग भी एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान के अंदर जो माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क है पीएमएन के नाम से, उसके अंदर माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नॉन बैंक्स भी हैं। और ये लोग जो हैं ये दोनों इंस्टीट्यूशन, ये तकरीबन 40 से ऊपर इंस्टीट्यूशन हैं, और ये इनमें से कई जो है ये हाउसिंग के अंदर प्रोडक्ट्स देती है। वो हाउसिंग के यूजुअली लोन उनके इंक्रीमेंटल हाउसिंग के होते हैं। इंक्रीमेंटल हाउसिंग ये होता है कि गरीब आदमी जो होता है उसके पास कोई जमीन पड़ी होती है, या रूरल सेटिंग होती है, लोगों के पास जमीन होती है, उनके पास जमीन का टुकड़ा होता है, उस जमीन के टुकड़े में एक कमरा डाल लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा कमरा डाल लिया, तीसरा कमरा डाल लिया, छत डाल ली, उसके ऊपर सो एंड सो फोर्थ, वो इस तरह से डेवलपमेंट करते हैं, तो वो उस तरह की फाइनेंसिंग करते हैं। अमूमन मॉर्गेज फाइनेंसिंग 20 साल की होती है, ये फाइनेंसिंग 1 2 3 साल की होती है, और उसके ऊपर वो आपको उतने पोर्शन के लिए वो दी जाती है, और उसके अंदर सोशल कोलेटरल भी होता है, क्योंकि अक्सर जो ये घर होते हैं जिनके ऊपर से इंक्रीमेंटल हाउसिंग होती है उस पे उसके टाइटल्स क्लियर नहीं होते, तो उस पे वो बैंक का चार्ज नहीं लग सकता। तो ये प्रोडक्ट चल रहे हैं, इस प्रोडक्ट को भी बढ़ाना चाहिए, और मेरे ख्याल में इसमें ज्यादा रूरल सेटिंग में आपके खास तौर पे ये बहुत ज्यादा होता है कि रूरल सेटिंग में जमीन सस्ती भी है, महंगी भी नहीं इतनी, और लोगों के पास जमीन है भी। उनका प्रॉब्लम है कि वहां पे उन्होंने उसमें उस जमीन के ऊपर घर कैसे बनाने, कमरे बनाने हैं।
तो ये बिल्कुल एक प्रोडक्ट है, इसको लेके चलना चाहिए और ज्यादा चलना चाहिए। अर्बन सेक्टर में इस तरह का इतना बड़ा ये इतनी बड़ी इसकी एक्साइटमेंट नहीं आती, खासतौर पे बड़े अर्बन सेंटर में, क्योंकि यहाँ पे जमीन महंगी होती जा रही है और यहाँ पे आपको वर्टिकल जाना है। और वर्टिकल के लिए फिर इस तरह से नहीं है, वो फिर आपको लो कॉस्ट हाउसिंग सोल्यूशन देने हैं। और अगेन इससे मैं पीछे आपका एक सवाल था कि जी लो कॉस्ट हाउसिंग और अफोर्डेबिलिटी के अंदर था, तो लो कॉस्ट में एक और चीज मैं आपको जिक्र करता चलूं कि लो कॉस्ट के अंदर एक कमर्शियल वायबिलिटी होती है। क्या आप हमारे यहाँ देखें अर्बन सेंटर्स के अंदर तो बिल्डर्स जो होते हैं वो अमूमन वो वाले घर बनाते हैं जिस घर के अंदर जो है वो उनको फौरी कैश बायर मिल जाता है। फौरी कैश बायर आपका वो अगेन उसको मिलता है जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं, और अमूमन जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो ऑलरेडी अपने घर पे रह रहा होता है, और वो इन्वेस्टमेंट के लिए वो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा घर वहां पे ले लेता है। वो अपार्टमेंट बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, टाउन हाउसेस बनते हैं, और उसके अंदर वो दिखाते हैं कि जी हाँ हम ऐसे लोगों को देखें जो अफोर्ड कर सकते हैं या बाहर से पाकिस्तान से आ रहे हैं जिनकी जेब में पैसे हैं, और वो फिर 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ इस तरह के फ्लैट्स बन रहे होते हैं। अब उसमें जो रहने वाले जो खरीदने वाले होते हैं मेजोरिटी वो अपने घरों में पहले रह रहे होते हैं, फिर उसमें इवेंचुअली कोई रेंट पे रह रहा होता है। तो वो एक वो पूरा प्रॉब्लम चल रहा है। तो लो कॉस्ट के जो बड़े बड़ी बिल्डिंग्स है वो नहीं बनती हैं, क्योंकि वहां पे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपरेंट देके चाहे 30-50 लाख का भी घर है वो ले सकें, और वो लेने के लिए उनको मॉर्गेज अवेलेबल नहीं है। तो उनके लिए प्रोसेस यही है कि जो भी जमीन है उसके पास थोड़ा सा कर्जा लेके एक कमरा डाल दिया, एक किचन डाल दिया, एक बाथरूम डाल दी, एक छत डाल दी, इस तरह से वो चलते रहते सही। आप अब बार बार हमारी डिस्कशन के अंदर मॉर्गेज फाइनेंसिंग का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है। सो क्या वजह है कि इतनी गवर्नमेंट्स आई और हमने जब पीटीआई गवर्नमेंट आई और उसने इतने ज्यादा प्रोमिस किए कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, और उसके उसी सिनेरियो में हम देखें तो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी भी बनी। तो इसका ना मिलना या लैक ऑफ मॉर्गेज फाइनेंसिंग, इट्स एन इंस्टीट्यूशनल ड्रॉबैक, और अगर ये है तो फिर इसके लिए क्या इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स करनी चाहिए कि इसमें बेहतरी आ सके, यूजर एंड को फैसिलिटेशन मिल सके। देखिए जी, ये मल्टीपल इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं इसमें। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर पहले बताता चलूँ कि जी मॉर्गेज फाइनेंसिंग जो है वो ना होने के बराबर है। जैसे हमने बताया कि आपको इस वक्त नहीं तक के पता 38 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 80 लाख 85 लाख आपकी फैमिलीज आ रही हैं, उसमें से तकरीबन आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज लोन जो है वो मिल मिला के 1 लाख 1.5 लाख की है। मतलब ये तो बात आप कह लें ना होने के बराबर है। आप इसमें से अपनी इस रूम में एक सर्वे कर लें और पूछ लें कितने लोग हैं जिनके घर मॉर्गेज में है। और इसी तरह का वेबिनार इस वक्त पाकिस्तान से बाहर किसी वेस्ट में अगर आप कर लें तो वहां पूछे कितने हैं, तो आपको उसका जवाब वहां से साफ ये भी मिल जाएगा कि कितने हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जी वो मॉर्गेज फाइनेंसिंग क्यों नहीं हो पाई पाकिस्तान में, और 2005-7 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया दोनों का एक जैसा हाल था, दोनों के अंदर मॉर्गेज फाइनेंसिंग ना होने के बराबर थी। इसकी एक टर्म्स होती है जी, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी करते हैं कि मॉर्गेज फाइनेंसिंग की जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो उस मुल्क के जीडीपी का कितना पोर्शन है। तो पाकिस्तान में वो जो थी वो लेस देन 1% थी, इंडिया में भी लेस देन परसेंट थी। इंडिया में आज 12-14% पे चली जा चुकी है, पाकिस्तान में वो 0.5% पे और भी कम आ गई, 0.3%। तो पिछले ये 10 सालों डिफरेंस, में हाँ, इस डिफरेंस को हम कैसे समझे, क्यों कैसे ऐसा हुआ? कैसे कम करें, ये पहले बात की है। और ये डेवलप मुल्कों में ये 90% 80% और इवन ओवर 100% भी होती है। इस डिफरेंस के ऊपर जी पहली बात ये है कि जी दो चीजें है कि डिमांड सप्लाई है ना, कि जी आप एक घर लेना चाहती हैं जी सना, और आप क्या आप मॉर्गेज की डिमांड करती हैं, पहला सवाल ये। अच्छा जी, मैं एक बैंकर हूँ, मैं आपको घर देना चाहता हूँ, क्या मैं उस घर की सप्लाई देने में या उसकी फाइनेंसिंग देने में मैं कंफर्टेबल हूँ। तो ये देर आर बोथ इशूज, डिमांड साइड के भी इशूज है, सप्लाई साइड के भी इशूज है। डिमांड का सबसे बड़ा मैंने इशू अफोर्डेबिलिटी का बताया कि भाई सना जिस घर में रहती हैं वो सना उस घर में या तो उनको उनके पेरेंट्स ने दिया, उनके हस्बैंड का या वटेवर है, या वो किराए पे रहती हैं। अगर वो घर खुद से अपनी तनख्वाह से जो उन्हें यूएमटी देती है उसके अंदर वो घर को मॉर्गेज करना चाहे तो उन्हें जो घर मिलता है वो घर जो होता है वो 2 मरले का 3 मरले का बनेगा, और वो ऐसी लोकेलिटी में होगा जिसमें सना नहीं रहनी चाहेंगी। सना जहाँ पे रहती हैं जो उनको उसमें जो किराया दे रही हैं या वो उनको जो भी उनको वो मिला है विरसे में, तो वो उसमें ही रहती रहेंगी।
वो हम्म, उस तरफ नहीं मूव करेगी। और या तो अब ये है कि भाई या तो जिस जगह पे सना रहती हैं उस जगह के घर की कीमत कम हो या सना की तनख्वाह बढ़े, तो फिर ये अफोर्डेबिलिटी का होता है ना कि अफोर्डेबिलिटी का ना 30-35% ऑफ योर डिस्पोजेबल इनकम वो जाना चाहिए, तो वो हम्म, बड़ा मिसमैच है। और वो जिस जगह पे आपको मिलता है वो आपकी वो आप उस जगह पे रहना नहीं चाहती, कल्चर आपका इश्यूज है, आप उस सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा को बिलोंग नहीं करती जिस घर में आप जिस में आपको मॉडल्स मिलेगा, तो फिर आप ये नहीं, आपकी डिमांड नहीं आती नंबर। तो डिमांड के लिए या तो आपकी तनख्वाह बढ़ती जाए, तनख्वाह बढ़ने के लिए आपकी ओवरऑल इकोनॉमी को ग्रो करना चाहिए, जब इकोनॉमी ग्रो करेगी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। दूसरा है कि रियल एस्टेट प्राइसेस ना बढ़े, लेकिन हम जब देखते हैं हम्म, कि पिछले 15-20 सालों में आपकी तनख्वाह इतनी बढ़ी है तो रियल एस्टेट प्राइसेस इतनी बढ़ गई है। पिछले अगर 3 सालों में देखें, जब से हाउसिंग का इन्होंने लो कॉस्ट हाउसिंग का इनिशिएटिव भी डाला और इन्होंने नया पाकिस्तान का पूरा फ्रेमवर्क भी बनाया, कंस्ट्रक्शन की एमनेस्टी स्कीम भी लेके आए, सारा कुछ हुआ। आप देख लीजिए कि लो कॉस्ट हाउसिंग के अंदर तो हाथों पे गिन लें आप, इतने घर इतने प्रोजेक्ट हुए हैं, वो तो फेल हो गई है, वो तो चल ही नहीं रही है। लेकिन आप हाउसिंग प्राइसेस देखें, आप कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, और लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, अफोर्डेबिलिटी तो और भी वो डियरर हो गई है, हम्म, अफोर्डेबिलिटी तो और भी कम हो गई है। फिर इसका एक है, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। बाहर के मुल्कों में जहाँ पे ये काम होता है वहां 2% 3% के रेट में मिल जाता है। पाकिस्तान में पिछले 10 साल में रेट 6 से 15% के दरमियान रहे हैं, और उसमें फिर ऊपर आप प्रीमियम डाले तो आपको मिनिमम 9% पे अगर हाउस कॉस्ट मिलता है और मैक्सिमम आपको 18% पे वो पे करना पड़ता है, तो वो अफोर्डेबिलिटी नहीं आती। अब इंटरेस्ट रेट क्या इनके लिए, हाउसिंग के लिए हम कम करते हैं, तो वो पूरा लेके एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और उसको डिस्कस करना पड़ेगा। वो हमारे मेरे ख्याल है इस जो बियॉन्ड दिस डिस्कशन है, बट वो एक फंडामेंटल मैक्रो इशू है जिसको एड्रेस करना है कि ओवरऑल आपकी इकोनॉमी करे, ग्रो करे, ओवरऑल आपके फिजिकल और एक्सटर्नल डेफिसिट्स कंट्रोल में आए, ओवरऑल आपकी इन्फ्लेशन जो है वो काबू में आए, तो आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आ सकते हैं। वो एक लॉन्ग शॉट है, वो एक अलग हम्म, कहानी है, उसको अलग बात कर सकते हैं। पर वो दूसरी बात हाउसिंग प्राइसेस की है जो आपकी वो हम्म, ऊपर बढ़ रही है, उसको आप कम क्या कह सकते हैं भाई, जो खाली प्लॉट है जिसके पास है उस पर आप जरा जरा लैंड टैक्स दे दें। पाकिस्तान के अंदर पूरे पंजाब से जितना लैंड टैक्स आता है, इंडिया के एक शायद चेन्नई से चेन्नई वो उससे ज्यादा टैक्स आ जाता है। यहाँ पे किसी ने 10-10 प्लॉट रखे हुए हैं, उस पे उसको सारे साल का तो टैक्स ये जो टैक्स, ये एक टैक्स ना एक देना। डीएचए एक डीएचए का एक घर, एक केनाल का हम्म, घर, इसमें 5 करोड़ का अगर वो घर है या 4 करोड़ का है, उस पे हम्म, आपको पता है कितना इनकम टैक्स साल का 15,000 या वो लैंड टैक्स देना पड़ता है। उसको आप 15 लाख करें, उसको 5 लाख करें, तो लोग जो 10-10 प्लॉट लेके बैठे हैं वो उसको नहीं लेके बैठेंगे, उनकी कीमतें रैशनलाइज होगी। बट वो सारे पॉलिसी बनाने वाले वो सारों के पास प्लॉट होते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर को भी जाके मैंने ये बात कही कि आप ये करें, तो प्राइम मिनिस्टर के आगे से मिनिस्टर कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब 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 इंटरेस्ट है सबका। हर मुल्क में जिसके पास थोड़ी पावर है, उसके पास प्लॉट्स हैं, उसके पास जमीन है, वो उनकी प्राइस ऊपर जाना चाहता है। तो ये एक फंडामेंटल इशू है, इसको कहीं ना कहीं जाके सॉल्व करना है। जी अब बताइए क्या अच्छा, करें। ये वाला जो इशू है, यानी अगर हम आपने 2005 एंड 2007 की बात की जिसमें इंडिया और पाकिस्तान सेम लेवल पे थी, तो हम ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंडिया के, बेशक इंडिया की इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कुछ इंस्टीट्यूशनल चीजों को भी ठीक किया है, टैक्सेस बढ़ाए अपनी आवाम के ऊपर, जिसकी वजह से वी कैन सी द डिफरेंस आफ्टर 15 एंड 20 ईयर्स के वो हमसे मॉर्गेज फाइनेंसिंग में 10% से ऊपर चले गए। सो सॉल्यूशंस आर देयर, लेकिन उन सॉल्यूशंस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। ठीक है। कहीं ना कहीं हम यही कह सकते हैं कि ऐसा ही है कि पॉलिसी गाइडलाइंस तो बहुत ज्यादा है, किताबी बातें भी बहुत ज्यादा हैं, वादे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा ऑन द ग्राउंड। अच्छा, पहले तो मैंने आपको डिमांड साइड के मसले बताए, मैं आपको थोड़ा सा हम्म, सप्लाई साइड के प्रॉब्लम बता दूं। ये तो डिमांड साइड के ना, सप्लाई साइड ठीक है। के, कल को अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं कि आपको हम्म, यूएमटी की तनख्वाह जो मिल रही है वो इतनी हम्म, तनख्वाह दे रही है कि भाई आप डीएचए के अंदर या जोहर टाउन के अंदर या कहीं पे आप घर जहाँ पे आप रहती हैं, आपको वो घर अफोर्ड कर सकती हैं और आप बैंक के पास जाके लेने चाहती हैं, तो आपको बैंक देने में रिलक्टेंट होगा। उसकी प्रॉब्लम्स है। अगर आप डीएचए में रहती हैं तो वो इतना रिलक्टेंट नहीं होगा, जोहर टाउन में रहती हैं तो वो हम्म, रिलक्टेंट होगा, एलडीए बिल्कुल। सोसाइटी में रहती हैं और भी रिलक्टेंट होगा। तो आप बेसिकली लैंड टाइटल्स होते हैं जी, लैंड टाइटल होता है जी। लैंड मॉर्गेज क्या होता है, कभी किसी ने सवाल भी पूछा हुआ था कि मॉर्गेज बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है। मॉर्गेज ये होता है जी। कि जी आपने अगर घर का लोन लेना है, घर का लोन लेना है, जैसे आप गाड़ी जाते हैं, मैं हम्म, लाइक पुट इट दैट, कार फाइनेंस तो लोगों को ज्यादा पता है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी फाइनेंस आता होती है।
आप एक गाड़ी लेने जाते हैं, आप आपको बैंक एक फाइनेंसिंग की प्रोडक्ट देता है, आपके पास 30 लाख रुपए की गाड़ी है, आप 3% डाउन करते हैं पेमेंट 9 लाख रुपए की, या 10 लाख रुपए डाउन करते हैं, 20 लाख की आप फाइनेंसिंग करते हैं। वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो सारा पीएमटी फॉर्मूला लगा के जी आपको वो आपको मंथली दे देता है कि जी ये आपकी किस्त है। आप मंथली किस्त पे करते हैं या लोन आपका अप्रूव होता है, वो आपसे आपकी सैलरी सर्टिफिकेट, आपकी बाकी चीजें लेता है, वो उनका बैंक का लोन प्रोसेस करता है, वो अप्रूव हो जाता है, सारा कुछ आपको लोन मिल जाता है, आप पे करते रहते हैं, ठीक है जी, और ये काम हम्म, चलता है। यही काम आप घर में लेने जाएं, आपको आपको वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी कुछ वजूहत है। अब इसमें ये लोन होते हैं, ये एसेट बैक लोन होते हैं जी। जैसे गाड़ी की फाइनेंसिंग है या घर की फाइनेंसिंग है, जैसे कार फाइनेंसिंग है, मॉर्गेज की जगह हम हाउसिंग फाइनेंस कहते हैं, हाउसिंग फाइनेंस है, ये दोनों एसेट बैक होते हैं। गाड़ी जिस पे आप लोन लिया हुआ है वो गाड़ी पीछे एसेट है। अगर आपने 3 महीने गाड़ी की पेमेंट नहीं दी तो आपने से किसी ने गाड़ी फाइनेंस कराई हो, तो गाड़ी की अगर आपको 2 चाबियां मिलती है तो एक चाबी जो होती है वो बैंक के पास होती है, और गाड़ी के ओरिजिनल कागज बैंक के पास हम्म, होते हैं। तो वो क्या होता है कि जी आपने 3 महीने पे नहीं की, वट जो टर्म पीरियड है, वो आपका किसी दिन, और गाड़ी में ट्रैकर भी लगा होता है जो आप गाड़ी की लोकेशन बता रहा होता है, वो चुप करके आएगा, वो आपकी गाड़ी बैंक उठा के ले जाएगा। ठीक है जी। आप पुलिस के पास जाएं, आप किसी के पास जाएं, कोई डी कोर्स नहीं है। आपने पेमेंट नहीं की, वो आपकी गाड़ी ले जाएगा, वो गाड़ी को बेच देगा। लेकिन अगर ये जो है, अगर आपने यही चीज अब हम घर पे ले आए कि जी आपने घर को फाइनेंस कर लिया। पहले तो है, पहला पहला सवाल है कि जी घर को फाइनेंस किया है तो घर के कागज गिरवी रखेंगे, जैसे गाड़ी के हम्म, कागज गिरवी रखे थे। घर की चाबी तो नहीं वो आपको मिलेगी, लेकिन गाड़ी की तो चाबी भी रख लेते हैं वो। अच्छा, फिर कागज गिरवी रखने के लिए उसका कागज जो घर का जो टाइटल है, यानी कि घर का जो कागज है वो कितना साफ है। साफ से मतलब है कि उसके ऊपर किसी और ने तो नहीं अपना नाम लगाया हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जी मैंने लैंड खरीदा, उसमें मैंने हाउसिंग सोसाइटी बनी, उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मैंने एक प्लॉट सना को बेचा, सना ने उस पर अपना घर बनाया, और सना ने जनाब आली वहां पे बैंक की फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा जी, वो मेरे से सना ने लिया, सना का तो बड़ा क्लियर है जी। अब मैंने जो लैंड खरीदा था, वो पीछे जो लैंड था वो किसी और के नाम है। ठीक है जी, मैंने तो कर आगे हम्म, पैसे लगा के हाउसिंग सोसाइटी बना दी, बट सना जब कर जाएगी तो वो कहेगी जी इस लैंड का टाइटल क्लियर नहीं है, क्योंकि ये जिस से आपने जो सोसाइटी बनाई है उसके पीछे इसके अंदर कोई और खड़ा हुआ है, या नहीं खड़ा तो कल कोई आ सकता है वो, क्योंकि वो हम्म, क्लियरिटी नहीं है। लेकिन हम्म, यही डीएचए में जाते हैं, डीएचए पीछे खड़ा हो जाता है, वो कहते हैं जी लैंड क्लियर है, नहीं होगा तो मैं एमडेमनिटी देता हूँ। हम्म, एमडेमनिटी ये होता है कि जी मैं जिम्मेदार हूँ इस बात का कि इस लैंड की क्लैरिटी का होगा, तो डीएचए जिम्मेदार है, तो डीएचए में वो दे देता है। सो डीएचए में आपको मिल जाएगा, आपको बैरियर टाउन में नहीं मिलेगा, तो बैरियर के लैंड प्रॉब्लम है। आपको जॉर्ज हम्म, टाउन में कुछ जगहों पे मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सो एंड सो फोर्थ। एक तो ये प्रॉब्लम है। हम्म, अच्छा जी, दूसरा बात ये है कि अच्छा जी अगर आपने सब लैंड टाइटल सब क्लियर हो गए, सारा कुछ हो गया, सना को लोन मिल गया जबरदस्त जी, सना घर में रहने लग गई। अब सना के पास, सना ने पैसे नहीं दिए, पैसे हैं नहीं, या सना कहती है मैं नहीं देती, कर लेगा जो करना है। तो वो क्या होगा कि आपको वो कहेंगे कि भाई 6 महीने बाद आपको घर से निकालने आएंगे। वो गाड़ी को तो चाबी ली, गाड़ी के ट्रैकर लगा, लेके चले गए, घर से आपको कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि आपके कोड जो है, आपके लॉ जो है वो टेनेंट को सपोर्ट करते हैं। आप सना किराए पे घर पे ले लें और किराए पे रह लें, और आपको किराएदार घर से निकालना शुरू करे तो आप उस पे केस कर दें, 3 साल 4 साल आप तो उस केस को लड़ते रहेंगे, वो तारीख पे तारीख आती रहेगी। तो ये घरों पे भी है। जब बैंक्स देखते हैं कि यार ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो भाई लोन ही नहीं देंगे, कि भाई ये कल को सना कहती है कि मैंने नहीं पैसे देने, बैठी रहेगी, वो घर पे वो बैठी रही है, बैंक का एसेट फंस गया, तो बैंक इस तरह से भी रिलक्टेंट। माइक म्यूट हो गया। माइक, आपका माइक म्यूट हो गया। हाँ जी। अब जी जी। जो ये अगर हम देखें कि अमेरिका के अंदर क्या होता है या बाहर किसी डेवलप कंट्री में क्या होता है कि जी आपने 6 महीने करनी थी, आपने फिल्मों में देखा होगा, आपने अखबारात में पढ़ा होगा कि जी वो आते हैं, वो आपके इविक्शन का कह देते हैं जी आपने घर भी करना है, और वो आपकी वो लोकल पुलिस और वो सारा कुछ आपको सपोर्ट करती है, और वो आपको घर से निकाल के कहेंगे जाओ रोड पे रहो, जिधर रहना है रहो, एक घर आपका जो है जिसने मॉर्गेज किया उसको मिल जाएगा, आपने फिक्र करनी की। ठीक है, हमारे यहाँ ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। अब तो ये जब तक आप ये कोर्ट आपके ये मसले हल नहीं करेगी, जब हम्म, तक कोर्ट की आपकी थिंकिंग ठीक नहीं हम्म, होगी, जब तक आपके फोर इसको फोरक्लोजर कहते हैं जी।
जब तक फोरक्लोजर लॉ क्लियर नहीं होंगे, जी जब जी तक एक रजिस्ट्री कोर्ट ऑफिस रजिस्ट्री ऑफिस नहीं बनेगा जो देखेगा भाई 6 महीने हो गए या पेमेंट नहीं की, जाके वो आपको वो वेक कर देगा, तो बैंक से फाइनेंसिंग को नहीं करेंगे। तो ये आपके सप्लाई साइड इशू। तो इसमें दोनों सप्लाई और डिमांड साइड हम्म, इश्यूज हैं, जब तक वो रिजॉल्व नहीं करेंगे तो हाउसिंग फाइनेंस या मॉर्गेज फाइनेंसिंग जो एक ही चीज है दोनों, वो परवान नहीं चढ़ेगी। सही। इसके अंदर ये जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एक पैराडाइम है अफोर्डेबल हाउसिंग की, इसके अंदर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के जो बिल्डर्स हैं उनका क्या स्कोप है और वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कम होता है और उनका इतना प्रॉफिट मेकिंग भी नहीं होती, सो हाउ दे कैन प्ले देयर रोल इन 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 दिस। देखिए जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है कि नहीं होती, ये तो बात मेरे ख्याल में नहीं ठीक है इतनी। अब आप मतलब आप देखें ना कि आप ये फोन है जी, एक कंपनी ये फोन बनाती है, ये फोन लेट से जी 1.5 लाख रुपए का है, ठीक है जी। इस पे फोन के ऊपर वो कंपनी लेट से 15,000 कमाती है, और ये वो पाकिस्तान में 1,000 फोन बेचती है। तो 15,000 रुपए के ऊपर 15,000 रुपए गए तो 15 लाख वट एवर उसने प्रॉफिट कमा लिया। यही अगर फोन सपोजिटली 20,000 का है और उस कंपनी पे वो 15,000 की जगह उस पर 2,000 कमाती है, और ये 1,000 की जगह ये 1 लाख फोन बेचती है, तो यहाँ पे पैसे ज्यादा कमा लेगी कंपनी। अफोर्डेबिलिटी तो मतलब वो इनकम तो ये है कि भाई मतलब वॉल्यूम है और वैल्यू है, उसके ऊपर है। लो कॉस्ट हाउसिंग मैंने आपको बताया कि जैसे कि 30-32 करोड़ मिलियन या 3 करोड़ से ऊपर खानदान जो है, वो खानदान जो है वो लो इनकम ग्रुप में पाकिस्तान में रहते हैं। उनके लिए लो कॉस्ट जब इनकम सोल्यूशन आएंगे तो वो फिर मतलब जैसे कि वो एक जाके एक बिल्डिंग बनाता है जनाब अली वो गुलबर्ग के अंदर, ठीक है ना, या वो एक बिल्डिंग बनाता है जब वो क्लिफ्टन में कराची के अंदर, तो वो जाके वो बिल्डिंग जब बनाएगा वो वही बिल्डिंग वो जाके जब वो कोई छोटी जगह पे जाके फिरोजपुर रोड पे या इधर उधर वो 10 बिल्डिंग बनाएगा उसी की, या 15 बिल्डिंग बनाएगा। वो ना उसकी फिनिशिंग उस तरह की होगी, ना उसकी जमीन की कीमत ज्यादा होगी। और वहां पे अगर ये इसी तरह एक बिल्डिंग में गुलबर्ग के अंदर वो 50 लोगों को बेचता है तो वहां पे वो 5,000 लोगों को बेचेगा। तो अफोर्डेबिलिटी तो आ सकती है, बट क्वेश्चन इज दैट कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ बिल्डिंग लो कॉस्ट हाउसिंग इज नॉट देयर। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो बायर है, बायर ने तो पैसे कैश पे देने हैं। वो कहता है मैं 50 घर बना लूंगा, हम्म 50 बायर मेरे पास कैश वाला आ जाएगा। मैं जब 5,000 मैं बायर ढूंढूंगा और वो गरीब आदमी है, वो कैश वाला, वो तो नहीं मुझे मिलेगा, वो तो इंक्रीमेंटल हाउसिंग करता है, वो तो ये करता है। तो अगेन अफोर्डेबिलिटी हम्म उसकी क्रिएट करनी है। इंडिया के अंदर इसको क्रिएट किया गया है। इसके अंदर इस तरह की कंपनीज, हाउसिंग ओके। का फाइनेंस कंपनीज बनाई गई हैं जो बिल्डर्स को भी पैसा देती रही हैं और हाउसिंग को भी देते रही हैं, और उससे एक वो मार्केट बनाई गई है। जब वो मार्केट बना दोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। ये तो रेगुलेटरी फेलियर है यहाँ पे। हाँ जी सना, आई गेस सना थोड़ा सा वो जी जी। हाँ। सिग्नल्स का इशू। अच्छा चलिए, हम फ्रॉम माय साइड, माय लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे पास चैट बॉक्स में है तो उनको हम देखेंगे। सो माय साइड के वी नो के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं जो कि टॉप लेवल से नीचे तक चल रहे हैं। तो लेकिन हमारे पास मार्केट बेस्ड या कुछ यूनिवर्सिटी एकेडेमिया बेस्ड भी रिसर्च सेंटर्स हैं, जैसे हमारे पास तबाद लैब है, हमारे पास करण दास है, तो ये किस तरह से फैसिलिटेशन क्रिएट कर सकते हैं टू एड्रेस ऑल सच कॉम्प्लेक्स हाउसिंग इश्यूज। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग भी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन साइड पे किस तरह से चीजों को बेहतर किया जा सकता है हाउसिंग सेक्टर के अंदर। देखें, दो तरह के काम होते हैं। एक होता है कि आप सोल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू योर रिसर्च, तो वो सोल्यूशन प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन प्रपोज करते हैं। ये काम तो पाकिस्तान में काफी हुआ है। हम्म अच्छा, दूसरा फिर है कि उसकी एडवोकेसी करते हैं, जैसे तबाद लैब और आपने बताया वो हम लोग हैं, सारा करते हैं। तो ये जो एडवोकेसी जो है कि ये पुश करना, ये काम हो रहा है, ये दोनों काम अपनी जगह होने चाहिए। तीसरी ये है कि आप डील्स कराते हैं, आप सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट कराते हैं। आप कोर्ट्स के साथ बैठ के कोर्ट के अंदर आप वो रजिस्ट्रार ऑफिस बनाते हैं। आप फोरक्लोजर लॉ के जब कोर्ट का फैसला आ गया उसको डिजाइन करके आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं। आप बैंक से साथ बैठ के बैंक से प्रोडक्ट बनाते हैं।
उनके सप्लाई साइड इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। फिर डिमांड साइड के जो इश्यूज है, प्राइसिंग के, वो आप उसकी टैक्सेशन को किस तरह करते हैं, वो सूबाई हुकूमतों को या लोकल गवर्नमेंट्स को उसको एड्रेस करना है। तो ये सारी चीजें साथ साथ आपको करनी पड़ेंगी, फिर ही जाके वो मार्केट बनेगी। तो वो बड़ा प्रॉब्लम है जी। भी प्रॉब्लम पिछला जो आया हुआ है वो ये है कि मार्केट में प्राइसेस इस तरह चल रही है कि अफोर्डेबिलिटी तो डियरर होती जा रही है और मुश्किल होती जा रही है। उसको जब तक आप लैंड के, एम्प्टी लैंड को एज एन इन्वेस्टमेंट टूल इन डेवलप्ड सोसाइटी, जब तक आप उस पर टैक्स नहीं करेंगे, ये फिनोमिना नहीं कम होगा। और वो टैक्स जो आप लगाएंगे, उस टैक्स से उसी शहर के, उसी कम्युनिटी के अंदर आप सपोर्ट करेंगे। उस सपोर्ट के अंदर आप वो इंटरेस्ट रेट सब्सिडी भी दे सकते हैं फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग। सोल्यूशन तो है, लेकिन ये है कि जो जो सोल्यूशन बनाने वाले हैं, जो वो है उन सब लैंड ओन करते हैं, अर्बन में या रूरल में या क्या। वो उनके उनके पर्सनल जो गेन्स है उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। तो ये चैलेंज है जी बहुत बड़ा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच मिस्टर अली, आपके इतने डिटेल्ड आंसर जो मैंने जो आपसे बात पूछी, आई गेस हमारे जो लिसनर्स हैं उनको बहुत हेल्प हुई होगी। व्हाट आर द रियल इश्यूज ऑफ हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगी। एक तो आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया, मोर्टगेज फाइनेंसिंग की जो कंफ्यूजन है उसको हम छोड़ देंगे। सुहेल किबरिया साहब का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्म recommendation to solve the complex problem of affordable low cost housing in Pakistan? जी जैसे मैंने कुछ कहा, इसका जो दो टू थ्री जी जी टू जी जी थ्री 2-3 मैंने देखिए को कुछ पॉइंट्स बता दें इसकी रिकमेंडेशन के। देखिए जी, अभी मैंने ये बातें अभी आपसे कर ली हैं ऑलरेडी के जी। उसके अंदर ये है कि कमर्शियल हम्म वाइबिलिटी कैसे क्रिएट करनी है। उसके लिए ये है कि जो लोग खरीदार है, उस खरीदार के पास कैश नहीं है, उसको उसको मॉर्गेज, उसकी उसकी हाउसिंग फाइनेंस की के प्रोडक्ट्स निकालने हैं जो बैंक्स दे सकें और वो एक अफोर्डेबल भी हो उसके लिए। ये है तक जाके जब बिल्डर को लगेगा कि भाई कमर्शियल वाइबल है, तो वो कमर्शियल बिल्डिंग्स मतलब लो कॉस्ट बनाना शुरू कर देगा और उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आएगी, कीमत कम हो जाएगी। और एक तो ये है। दूसरा ये है कि स्लम कन्वर्जन कैसे करनी है। उसमें ये है कि जब आप कोई बड़ी सोसाइटी, मिक्स सोसाइटी बनाते हैं, कि जब आप एक कोई सोसाइटी का लाइसेंस लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, तो उसको कहते हैं कि जी इसमें 20% जो है वो आपने घर गरीबों के बनाने हैं। इंग्लैंड में जैसे ही होता है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनती हैं, उन्हीं अपार्टमेंट बिल्डिंग में अमीरों के साथ वो कुछ घर होते हैं जो 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 कि लो कॉस्ट होते हैं। तो इस तरह के सोल्यूशंस मुख्तलिफ हैं। इन सोल्यूशंस को लेके आए, आप आहिस्ता आहिस्ता काम करें और उन पे करें। बट ये है कि कमर्शियल वायबिलिटी जो है इस वक्त, जो है कि बिल्डर जिसको इंसेंटिव मिल सके कि वो बनाए, वो सबसे बड़ा है। उसके लिए बायर जो है, उसके लिए आपने फाइनेंसिंग के टूल्स आपने लाने हैं। वो हुकूमत लेके आती है, वो कोई प्राइवेट सेक्टर लेके आता है, उस पे काम। अच्छा, या सुहेल किबरिया साहिब की तरफ से ये कमेंट है कि जैसे आपने इंडिया की बात की कि इंडिया ने अपनी मॉर्गेज फाइनेंस पे अबव 10% लेकर गया, तो अ, उनसे इंडिया के अलावा भी कोई ऐसी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं जिनके कोई सक्सेसफुल मॉडल्स हैं हमारे पास रिगार्डिंग द मॉर्गेज फाइनेंसिंग? बहुत सारी हैं जी। चाइना देखें, कोरिया देखें, ये अब इकोनॉमीज और ऊपर निकल गई हैं। इनमें भी बहुत हुआ है। आप इजिप्ट देखें और बहुत सारी इकोनॉमीज की, बहुत सारी दुनिया भर में ऐसी बेशुमार मिसालें मिलेंगी आपको जहाँ पे भी तरक्की हुई है, वहाँ पे ये काम हुआ है। सुनना चाह रहे हैं का तो ये यहाँ साइड जी म्यूट करके चलिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मोहम्मद सलमान। uh, उनका क्वेश्चन ये है कि जैसे लो इनकम ग्रुप के लिए हाउसिंग प्रोग्राम्स आते हैं फ्रॉम दी स्टेट, लेकिन फिर मार्केट की तरफ से जो स्पेकुलेशन हो जाती है एकदम से, ठीक है, और प्राइसेस प्रोजेक्ट के स्टार्ट में कुछ और होती हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जाती हैं, तो इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मार्केट इंटरवेंशन इनटू द पब्लिक हाउसिंग प्रोग्राम्स? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। एक इसका ये बेसिकली सवाल जो है वो कुछ ऐसा है कि भाई एक बिल्डर जाता है, बिल्डर वो जमीन लेता है, जमीन लेके उस पर घर बना, बिल्डिंग बनाना शुरू करता है या एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना शुरू करता है। अब वो बनाना शुरू करता है, तो वो जब शुरू में लॉन्च करते हैं और बाय द एंड जब तक बनती है, तो कीमत जो है वो 40%, 50%, 100% बढ़ जाती है।
इस तरह की कीमत को बढ़ने को कैसे रोका जाए, ये बेसिक ये सवाल है। तो या इसका मतलब है क्या तो वो पहले डिस्काउंट पे ऑफर करता है या बाद में वो प्रीमियम हो जाता है। तो ये देखें, ये प्रॉब्लम गाड़ियों में भी आता है। गाड़ियों का प्रॉब्लम आपको जरा आसान समझ आ जाएगा। आज आप पाकिस्तान में कोई गाड़ी लेना चाहती हैं, आप गाड़ी जाती हैं जी, आप गाड़ी के डीलर के पास जाती है, नई गाड़ी बुक कराती है, वो कहता है जी 6 महीने बाद गाड़ी आएगी, 4 महीने बाद आएगी, ठीक है जी, और जो भी गाड़ी की कीमत है वो मिलेगी। आज अगर आपने गाड़ी लेनी है, आप 4 लाख ऊपर दे दें। इसी तरह यही फिनोमेना उधर भी चल रहा होता है। वो ऑन मनी जो गाड़ियों का, ये ऑन मनी रियल एस्टेट में भी, इन प्रोजेक्ट्स में भी चल रहा होता है। उसमें होता ही है चूंकि बिल्डर फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं होती, और बिल्डर जो होता है वो क्या कहता है या कि मतलब अपना थोड़ा सा पैसा लेके उस पैसे के रिटर्न उसको पहले निकाल दे, और प्रोजेक्ट रिस्क जो होता है ना वो अपने इन्वेस्टर पे या एंड बायर्स पे डाल दे। मैं इसको जरा आपको पास में समझाता हूँ कि एक बिल्डर गया जी, उसने कहा जी मैंने लैंड लेना है। वो लैंड है, मैं हूँ बिल्डर जी, इस लैंड सना का है। मैं कहता हूँ लैंड जी सना, आप लैंड मैंने आपसे लेना है, ये भी 10 करोड़ का लैंड, 20 करोड़ का लैंड है, लेट्स से मेरे से आप 10 करोड़ भी ले ले, 10 करोड़ जो है ना, आप मेरे पार्टनर बन जाए, 10 करोड़ के एवज मैं आपको 3 फ्लैट या 4 फ्लैट दे दूंगा, ठीक है जी, जब बिल्डिंग बन जाएगी। सना कहती है ठीक है जी, जबरदस्त, ठीक है जी। अब मैंने वो 10 करोड़, मैंने वो बिल्डिंग बनानी शुरू की, मैंने एक आर्किटेक्ट के पास गया, मैंने डिजाइन बनाया, मैंने उसकी मार्केटिंग की, सारा कुछ किया। उसका बेसिक जो है ना, मैंने मतलब फाउंडेशन करके एक बेसिक जो है प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड उसकी एक विजिबिलिटी आ गई। फिर मैं जनाब इस कमरे में जितने इन्वेस्टर हैं सारे बैठे, इनको बुलाता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये इसमें 50 फ्लैट है, ये 25 फ्लैट अभी आप ले लें, मैं आपको ये फ्लैट अभी जो है ना, ये फ्लैट हमने लॉन्च करना है जी 3 करोड़ का, मैं आपको 2 करोड़ पे दे देता हूँ, या मैं 3 करोड़ में लॉन्च कर रहा हूँ, 3 करोड़ देता हूँ, ये आगे जाके 4 करोड़ पे चली जाएगी कीमत इसकी। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त है। तो ये जब ये चीज आपकी, ये फ्लैट की जब इस तरह होगी, और वो लोग फिर आके लेंगे, और लोग लेंगे तो वो आपका जो बिल्डर है वो अपने पैसे इधर से निकाल लेगा और वो रिस्क ट्रांसफर कर देगा इन लोगों पे। अब बिल्डिंग आगे बनती है, पूरी बिकती है, कितने भी बिकती है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन चूंकि बीच में इन्वेस्टर आ गए, वो अपना रिटर्न चाहेंगे, वो कहेंगे ठीक है जी, हम इसको फ्लैट को रखेंगे जब तक हमें पैसे नहीं मिलते, 4 करोड़ 5 करोड़ का जो हमने फ्लैट बेचना नहीं मिलता। ये पूरा सिस्टम चलता है। तो ये सिस्टम, जब इस सिस्टम को आप ठीक नहीं करेंगे कि शुरू में बैंक के थ्रू आप एंड बायर को ही खरीद ले और वो जो रहना चाहेगा और जो कीमत है उसी पे रहेगी, तो वो नहीं होगा। ना गाड़ियों का ऑन का मसला ठीक होगा, ना ये रियल एस्टेट के यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डॉक्टर फ्रीहा। इनका क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के अंदर, हम लाहौर के अंदर मेन बुलेवर्ड के अंदर देखें, गुलबर्ग के अंदर बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मेडिकल कह रही हूँ पब्लिक कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं जिनके ऊपर वाले फ्लोर्स खाली हैं। तो हम इस चीज को डोंट यू थिंक सो कि उसको रीन्यू करके अर्बन रिन्यूअल प्रोग्राम्स के थ्रू उसको रीजनरेट करके हाउसिंग शॉर्टेज को एड्रेस कर सकते हैं, उनको उनको उसका रीयूज, अडेप्टिव रीयूज कर सकते हैं। आप कह रही हैं कि जो ऑलरेडी बिल्डिंग्स हैं जो जिसमें को या लैंड के, कमर्शियल प्लाजास बने हुए हैं, और इन लेकिन यूज वो नहीं है। देखिए कमर्शियल प्लाजा की जो प्राइस होती है वो आपको पता ही है, वो उसमें इतना वो नहीं हो सकता। तो या तो आपकी कमर्शियल एक्टिविटी जनरेट हो या उसकी प्राइस को नीचे लाके हाउसिंग नहीं, किया लेट से जाए। जैसे कमर्शियल प्लाजास में ऊपर अपार्टमेंट्स भी तो होते हैं ना, तो उन्हीं को उसी शिफ्ट के ऊपर किया जा सकता है कि नहीं? डोंट क्या यू किया थिंक जा सो कि सकता है? ये वो ऑलरेडी घर बने हुए हैं, क्योंकि वर्टिकल डेवलपमेंट भी है ऑलरेडी। तो क्या किया जाए उसको, मतलब करना क्या है उसके साथ? मतलब तो बने हुए हैं घर, उनका क्या करना चाह रहे हैं? क्या वो बिक नहीं रहे हैं? क्या लोग उस पर रह नहीं रहे? इशू क्या है? आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो। मैं ये कह रहा हूँ क्या लोग उस घरों में रह नहीं रहे, वो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं कमर्शियल, उनके साथ क्या किया जाए? सवाल नहीं मैं समझा रहा। नहीं नहीं, एक्चुअली जो हमारे पास कुछ ऐसी हमने कमर्शियल बेस्ड बिल्डिंग्स देखी है जो ऊपर से इनके ऑफिसेज बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, और वहां पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी भी नहीं हो रही, कोई रेजिडेंशियल एक्टिविटी भी नहीं हो रही। तो इसके ऊपर एलडीए को या जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी किसी भी सिटी की है उसको इसके ऊपर सोचना चाहिए कि खाली चीज को, अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं यूज हो रही तो उसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया जाए, उसके लिए भी कुछ काम किया जाए, रादर देन उसको फिर ऐसी जगहों पे नेगेटिव एक्टिविटीज होती हैं, रॉबिंग एंड नेगेटिव किस्म की देखिए एक्टिविटीज जहाँ आप एक जो बात चीज खाली पड़ी रहे।
आप एक बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, लाइट भी है, सब कुछ है। गोस्ट हाउसेज और गेटोज होते हैं ना, आपने बिल्डिंग बना दी, आपने सोसाइटी बना दी, वहां पे लोग आके नहीं रहते, तो जब रहते नहीं है तो वहां पे फिर इलीगल और शेडी एक्टिविटीज होती हैं। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम गुलबर्ग में मेरे ख्याल में नहीं है। वहां पे कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे आपके घर, वो कमर्शियल ऑफिसेज नहीं उस तरह से वो डिप्लॉय हुए या घर नहीं हुए, क्योंकि उनका रेंट ज्यादा है, क्योंकि उनका इकोनॉमिक रिटर्न उतना नहीं है, वहां पे बिजनेसेस को समझ नहीं आती है। बाकी वही तो बात है कि भाई रियल एस्टेट प्राइस ऊपर चली गई है, रिटर्न ऊपर है, लोगों ने यहाँ पे 6-6 DHA के अंदर 4 मरले के 8 मरले के प्लाजास की जो जो कीमत है, वो जितना छोटा ऑफिस होता है उसका जितना रेंट है वो उसमें कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो लोग यूज नहीं करते, अनलेस कि उसकी प्राइस रैशनलाइज हो, जो उसके ओनर को कल को समझ जाएगी तो वो उसको करेगा और वो हो जाएगी इवेंचुअली। वरना वो क्या होगा, वो फिर जगह बिक जाएगी, वो बिल्डिंग डिमोलिश होकर नई बिल्डिंग बन जाएगी। तो ये तो प्रॉब्लम है कि जी जब बिल्डिंग बनाते हैं लोग, अगेन मेरा पिछला वाला सवाल, जो पिछला जो जवाब था वो इसी से लिंक था कि जब बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डर जो होता है वो अपना पैसा शुरू में निकाल देता है, वो अपना रिस्क निकाल देता है, वो सेकेंडरी मार्केट में वो रिस्क को ट्रांसफर कर देता है अमंग द इन्वेस्टर्स एंड एवरीथिंग। वो इन्वेस्टर जो है कुछ पैसे बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते, वो पैसा फंस जाता है, क्योंकि बिल्डिंग को एक जो बंदा ओन करता है उसको एंड में चलाना उसके इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि वो अपना रिटर्न पहले निकाल चुका है। तो ये पूरे मॉडल को जब तक रीडू नहीं करेंगे ये चीजें नहीं रहेगी। और शायद ये भी कुछ कमेंट में मुझे लग रहा है कि कुछ पब्लिक स्पेसेस की लोग शायद बात कर रहे हैं, रेस कोर्स, GOR, बिग गवर्नमेंट ऑफिस, रेजिडेंस, कि उन पे क्या है कि जी GOR है, बड़ा जबरदस्त है, GOR के अंदर इतना बड़ा लैंड है, ये पुराने घर बने हुए हैं जनाब, इसमें बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना दो या XYZ बना दो, या आपका लाहौर के अंदर मियो गार्डन्स है, जबरदस्त जगह है, सेंटर में है, ये सारा कुछ है, या आजकल लाहौर में चल रहा है कि जी वो आपका वॉल्टन के अंदर जो एयरपोर्ट है उसको बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना रही है, इस तरह की बातें हैं। तो ये देखें जी, मतलब मेरे ख्याल में हर शहर का एक करेक्टर भी होता है, कैरेक्टर होता है, जैसे कि उस कैरेक्टर को नहीं लूज करना चाहिए। जैसे कभी जब वो ट्रेन बन रही थी जी, ऑरेंज ट्रेन बन रही थी, तो चौबरजी के बात है कि चौबरजी दे देंगे तो हम अपने मुल्क के, हम अपने शहर के अंदर जी नई हेरिटेज क्रिएट कर देंगे, तो वो हेरिटेज तो नहीं क्रिएट हो सकती ना, नहीं। तो वो इसी तरह ये GOR का एक अपना कैरेक्टर है, एक अपनी उसकी उसकी खूबसूरती है, वो पुराने घरों का एक 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 शहर के अंदर एक वो एक चीज दिखा रहे हैं। रेस कोर्स, इतना रेस कोर्स तो अभी कुछ भी नहीं है, तो न्यूयॉर्क में देखें जी, वो सेंट्रल पार्क जो है उसकी जमीन की क्या वो लोग कीमत निकालते हैं, बट वो पार्क है, लाहौर के रेस कोर्स और ये लॉरेंस गार्डन दोनों को मिला दे तो वो सेंट्रल पार्क का आधा नहीं बनता, वो या हाइड पार्क का आधा नहीं बनता है। तो वो हमें तो पार्क चाहिए, ज्यादा चाहिए, ग्रीनरी चाहिए, और ये ओपन स्पेसेस चाहिए, ओपन स्पेसेस तो हमें और क्रिएट करनी है। और GOR के अंदर ये है कि जी हाँ, उसको आप उन्हीं घरों को अपने अंदाज में रिवाइव करके उसके अंदर आप टूरिज्म एक्टिविटीज करें, कुछ और करें, बट इनको मतलब इस तरह नहीं कि वहाँ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना दें या हर जगह बना दें, आपको उसको देख के चलना है। अगर वॉल्टन एयरपोर्ट को आपने कुछ बनाना है, तो अगर वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाएगा तो क्या उस शहर के अंदर और उसके अंदर प्रॉब्लम इन्वायरमेंटली क्या आएंगे, उसकी सीवरेज और उसकी वाटर ड्रेनेज किस तरह होगी, उसका ट्रैफिक फ्लोज किस तरह होगा, वो शहर के ऊपर पूरा एक उसकी शहर के इन्वायरमेंट को, शहर के कैरेक्टर को किस तरह करेगा। ये सारी चीजें टाउन प्लानिंग है जी, आपकी आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के साथ एक टाउन प्लानिंग होती है जी, उस टाउन प्लानिंग को ये देख के करना चाहिए। ये ऐसे मतलब ऑन विम्स तो नहीं मैं कह दूंगा ना जी, और में ये बना दो, उसमें ये बना दो। वो आप टाउन प्लान करें, उसके हिसाब से जो चीज समझ आती है वो करें। शहर में ओपन स्पेसेस होनी चाहिए, शहर के अंदर पार्क्स होने चाहिए, शहर के अंदर हेरिटेज होनी चाहिए, और जहां पे जो लैंड आपको बचता है वो महंगा हो जाता है, उसमें आप वर्टिकल जाएं। दैट्स हाउ इट इज। Thank you so much for elaborating on this one. I guess this is the last question और इसके अंदर मरियम खालिद का क्वेश्चन है जो मुझे समझ आ रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस को किस तरह से इफेक्टिव बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग की बात करें वो तो जो आपने बार बार बताया भी हमें, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, इस वजह से लोग उसको वेल भी नहीं कर पाते बेस्ड ऑन दी लिमिटेड इनकम। इस सिनेरियो को क्या, इसमें क्या फाइनेंसिंग मॉडल है? माइक्रो फाइनेंस ज्यादा प्रोवाइड करना चाहिए, इस्लामिक मॉडल कोई आना चाहिए, शरिया बेस्ड आनी चाहिए स्कीम्स? कैसे इसको हम इफेक्टिव बना सकते हैं ताकि जो मिडिल इनकम तक का ग्रुप है एटलीस्ट वो तो उसको अवेल कर सके, मिडिल इनकम या लो लो इनकम? देखिए जी, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं इनका बड़ी अच्छी एक प्रॉब्लम है कि जी आपके क्योंकि
इंटरेस्ट रेट को नीचे तो मतलब आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, उसमें इकोनॉमी के अंदर और बड़े इम्पैक्ट आएंगे। जो लोग कहते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट 3% पर करते हैं हाउसिंग चल जाएगी, तो वो 3% इंटरेस्ट रेट के अंदर जब आपकी इकोनॉमी के अंदर से जब वो डॉलर 400 पे चला जाएगा और आपकी मतलब इकोनॉमी रुक जाएगी, तो वो हाउसिंग सस्ती नहीं होगी। तो मतलब ये वो आर्गुमेंट इस तरह तो नहीं आप कर सकते अनलेस के इकोनॉमी में आपके फंडामेंटल्स हो, 3% इंटरेस्ट रेट करने वाले, आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड हो, आपके एक्सटर्नल डेफिसिट फाइनेंसिंग हो, आपका फिजिकल कंट्रोल हो, तो फिर कर सकते हैं। अगेन दैट्स अ डिफरेंट डोमेन, बट उसको आप निगेट नहीं कर सकते। हाँ जी, अब आपका प्रॉब्लम यह है कि जी आपकी इस वक्त अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम यह है कि भाई ये मरियम खालिद जाके घर लेती है एक जगह पे जहाँ पे उनको उनकी तनख्वाह है जी 3 लाख और उनको 1 लाख रुपए की उसको पे कर सकती है, लेकिन वहां पे उन्हें 3 लाख पे करना पड़ा है तो वो नहीं ले पाती। तो किस तरह से इसको ठीक किया जा सके? या एक गरीब आदमी है जो 50,000 रुपया कमाता है और वो पूरा खानदान और उसको 20,000 रुपये या 15,000 रुपये पे करना है, वो उसमें उसको नहीं मिलता, तो कैसे? तो उसके लिए जी एक तो ये है कि कुछ गरीब जगह पे हुकूमत थोड़ा सा सब्सिडी दे दे जी इंटरेस्ट के ऊपर। थोड़ा ये है कि जी वहाँ पे आप अपनी सोसाइटी से साथ करके बैंक्स का रिस्क प्रीमियम कम कर दें। दूसरा ये है कि जी आप प्रिंसिपल पेमेंट्स को आप ले जाएं जी। जब आप मॉर्गेज रीपेमेंट करते हैं या हाउसिंग फाइनेंस की पेमेंट करते हैं और 15 साल का लोन है, 20 साल का लोन है, तो आपका जो उसमें आपकी प्रिंसिपल पेमेंट भी होती है, आप उसकी उसकी आपकी आपकी उसकी वो भी होती है, क्या कहते हैं जी, आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट भी होती है। यानी कि जो असल भी वापस कर रहे होते हैं, सूद भी कर रहे होते हैं। या इस्लामिक में जाके कहते हैं कि जी आप उसका रेंट भी पे कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी को खरीद भी रहे होते हैं। तो वो मॉडल कोई भी ले लें, इस्लामिक नॉन इस्लामिक, टोपी इधर पहनाए उधर पहनाए, बात आपकी एंटी अफोर्डेबिलिटी पे आ जाती है। तो अब उस पे जब आते हैं तो आप पहले 5 साल कह दें जी कि जी आप उसके अंदर से जो जो प्रिंसिपल है, जो उसकी घर की कीमत है, वो नहीं लेंगे, सिर्फ आप उससे रेंट लेंगे या इंटरेस्ट लेंगे। अच्छा जी, 5 साल बाद आप उसको देखें जी कि इन्होंने जी कमाना शुरू किया। अब ये इस 5 साल बाद उनकी जरा तरक्की हो गई है, वो ज्यादा पैसे कमा रही हैं और लैंड प्राइस तो 5 साल बाद ऊपर चली जानी है ना, तो उनको तो उतने 5 साल पहले का मिला हुआ है। तो वो शायद उसकी मैट्रिक्स में जो पहले उनकी 30% पेमेंट थी, वो अब उनकी पहले जो उनको 70% बनती थी, वो 50-40 पे आ जाएगा प्रिंसिपल पे करने। तो 5 साल बाद उसका प्रिंसिपल कर दें, या उनको एक ऑप्शन दे 5 साल बाद की जी आप 15% 20% एट अ चंक पे कर दो, तो आपका आगे वाला पेमेंट कम होगी। तो इस तरह के मिक्स्ड करके सॉल्यूशंस होते हैं जो आपके लाए जा सकते हैं। और अगर बैंक्स को आप परसू करें और एक प्रोडक्ट इस तरह के लाएं, उसमें वो काम किया जा सकता है। और अगर नहीं, लेकिन उसमें उसमें यह फोरक्लोजर स्ट्रांग होना चाहिए। 5 साल बाद नहीं पे करेंगे, वो कहेंगे मैं नहीं कर सकता, बैंक कहेगा ठीक है जी घर भेज दो, और घर भेज दो, घर बैंक का आ जाएगा, वो कहेगी ठीक है जी घर की कीमत तो अच्छी है, तो मैं इसको बेहतर है कि मैं 15-20% मैं कहीं से लेके कर दूं और मैं इसको आगे लेके चलते रहूं। तो ये इस तरह के सोल्यूशन आ सकते हैं और इस तरह के सोल्यूशन प्रपोज किए भी हुए हैं। थोड़ा ये है कि थोड़ा जरा आप इंटरेस्ट ज्यादा आए, फोरक्लोजर के मसले हल हो जाएं, तो ये सोल्यूशन आपके जो फोरक्लोजर जो सप्लाई साइड जो कोर्ट का प्रॉब्लम है कि भाई आपने घर लिया और आप पेमेंट नहीं करते तो को आपको बैंक नहीं निकाल सकता, ये मसला सबसे पहले हल करने वाला है। इसको हल करते तो इस तरह के सोल्यूशंस पे अफोर्डेबिलिटी को कहीं ना कहीं थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। जी सना। तो आई थिंक सना, सना के फिर वो कोई जी 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 जी। हाँ बस जस्ट लास्ट क्वेश्चन बिकॉज इट्स फ्रॉम आवर कुलीग प्लानर फॉरम फ्रीद। लास्ट क्वेश्चन है जो कि इसी की एक्सटेंशन है कि जैसे आपने अभी कुछ बड़ी रेमेडीज बताई हाउसिंग फाइनेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए। ये सारी चीजें पॉलिसी थिंक टैंक्स भी बताते होंगे गवर्नमेंट को, ठीक है, और इदारों को। ये सब कुछ होते हुए इन द करंट इतना ज्यादा इंथुजियाज्म भी है फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग, स्टिल ये वाले सारे मेजर्स कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहे, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग और फाइनेंस जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड या एक दूसरे के करीब आ जाए, रादर देन एक दूसरे से दूर जाने की बजाय। तो ये देखिए, क्यों नहीं अप्लाई कर रहे इदारे गवर्नमेंट के? देखिए ऊपर से जो फोकस है प्राइम मिनिस्टर का, तो वो तो बड़ा क्लियर है कि वो हम्म, चाहते हैं कि गरीब को घर मिले और वो उस पर रह सके, कमर्शियल सस्टेनेबल भी हो। लेकिन उसके लिए जो आपने जिस तरह से कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम दी,
कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया, एक रियल एस्टेट के अंदर एक पूरी फ्लरी हुई, तो उसमें आप देखें कि कीमतें आसमानों को छू गई। प्रोजेक्ट्स अमीरों के बन रहे हैं, गरीबों के प्रोजेक्ट्स कम आ रहे हैं, लो कॉस्ट हो रही है। तो वो बात है कि बीच में जो लोग थे, जो आबाद के और बिल्डर्स हैं और वो है, वो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे उन्हें कमर्शियली वायबल है, जहाँ पे पैसे बनते हैं। तो वो एक चीज हो रही है। तो इसका वही तरीका है कि आपने इनके पैसे सिर्फ नहीं बनने देने। ये कहते थे जी हमें पैसे बनने दे, सब ठीक हो जाएगा। अब उन्हें प्राइम मिनिस्टर को समझ आनी चाहिए कि इनके पैसे बनने चाहिए, लेकिन ये जो जमीन है ना, इसकी कीमत को देखें कैसे ऊपर जाती है। खासतौर पे ये प्लॉटिंग की होर्डिंग होती है, जैसे गाड़ी का ओन होता है, जैसे चीनी जो है उस मुल्क के अंदर उसकी भी होर्डिंग होती है, इस तरह ये रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की भी होर्डिंग होती है। तो ये होर्डिंग का एक ब्रॉड बेस्ड उस मुल्क का मसला है, इसको ठीक करें। इस्लाम भी ये कहता है होर्डिंग ना। तो रियल स्टेट सेक्टर के लिए अभी तक कोई रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं बनाई गई, और उसको वो क्यों नहीं बन, या डेवलप ये बड़े बड़े नेम्स ही नहीं बनाने देते जो डेवलपर्स के